ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اس جلسے کا پیغام ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنی ہے، مسجد کی فضیلت، اہمیت اور اسلام میں اس کی ضرورت کو بتلانا ہے، لیکن مسجد میں بلا کر کے جو کچھ کہا جاتا ہے جب تک اگر ہم نہیں سمجھیں گے خدا کی قسم وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا جو آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ لوگوں کیا ضرورت ہے کہ نہیں اللہ کے رسول والا جذبہ پیدا کرنا؟ تبھی ہم اللہ کے گھر کو آباد کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کا وہ حوصلہ پیدا کرنا اور دین کا وہ صحیح فہم معلوم کرنا، تبھی ہم مسجد کو آباد کر پائیں گے۔ ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں آگے بڑھو، آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو آج ہم حل کر لیتے ہیں کہ مسجد میں جو یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ مسجد کے اعمال سے جڑو، مسجد میں ہوتا کیا ہے، مسجد میں کس چیز کے لیے بلایا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسی عبادت تم کو دی گئی ہے جس عبادت کو کرو گے تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، اس منصب پہ پہنچ جاؤ گے، وہ اس چیئر کو حاصل کر لو گے، جس کرسی کو، جس مقام کو، جس عہدے کو، جس مرتبے کو کوئی فرشتہ بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے، وہ اگر کسی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، انسان کے مقدر میں وہ کیا عہدہ لکھا ہوا ہے، کیا منصب لکھا ہوا ہے؟ کیا انسانوں کو خبر ہونی چاہیے کہ نہیں میرے مقدر میں کون سا ایسا عہدہ، کون سا ایسا منصب اور کون سی ایسی کرسی لکھی ہوئی ہے جو مقرب فرشتہ حضرت جبریل امین کے حصے میں نہ آ سکی؟ اللہ کے رسول معراج میں گئے، ایک مقام ایسا بھی آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اس مقام پہ حضرت جبریل پیچھے رک گئے اور آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا جبریل میرے پیچھے آؤ، میرے ساتھ آؤ اور ساتھی کا حق ادا کرو، تم ساتھ آئے تھے تو میرے ساتھ آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ منصب ہے، یہ وہ کرسی ہے، یہ وہ قبولیت اور مقبولیت کی جگہ ہے، نشست ہے جس کو کوئی فرشتہ آج تک نہیں چھو سکا ہے، یہ تو انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ زور سے کہیے لوگوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے انسان کو نوازا۔ اللہ کے رسول وہاں سے تو آ گئے، آپ نے کہا اے پرندہ کے لوگوں، اے گرگدی والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کان کھول کر سنو، اس منصب کو حاصل کرنا ہے۔ ارے مکھیا کے الیکشن میں کتنی فکریں کرتے ہو، کتنی محنتیں کرتے ہو، کتنی دقتیں اٹھاتے ہو، کتنی کوششیں کرتے ہو، لیکن اگر اس مقام کو حاصل کرنا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ حاصل کرو، نماز سے حاصل کرو۔ الصلاۃ کہا معراج المومنین، یہ نماز، جو نماز اس مسجد میں ہوگی، جو مسجد بننے جا رہی ہے، جس کی ڈھلائی ہوگی، جس کی تعمیر کے لیے ہم لوگ فکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس عبادت کے ذریعے تم اس مقام تک پہنچ سکتے ہو جس مقام پر کوئی فرشتہ نہیں پہنچا ہے، بلکہ انسان کے مقدر میں، ایمان والے کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن لوگوں معاملہ یہ ہے کہ ہم اس عبادت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس بھیڑ کے اکٹھا کرنے کا مقصد تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ تو جلسے میں بھی اسی لیے آتے ہیں کہ جلسے میں حلوہ اور پوری ملتی ہے۔ گھر جاتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے، ان کی اہلیہ دیکھتی ہے کہ میاں کہاں گئے تھے، ہاتھ میں جھولی ہے، جھولی میں پولیتھین میں روٹی ہے اور حلوہ ہے، تو لوگوں کے دماغ میں اب یہ آ رہا ہے کہ جلسہ میں یہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کوئی علاقے کا کوئی جلسہ خالی نہیں جاتا، کتنوں اعلان کیجئے حلوہ پوری والے کو خبر ہو جاتی ہے اور جلسہ سے جو بھی جاتا ہے حلوہ پوری لے کے جاتا ہے۔
یہ جلسے کا مقصد ہو گیا، جلسے کا مقصد میلہ ہو گیا، جلسے کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا ہوا۔ اسی طرح ہم نے اس مسجد کے مقصد کو، اعمال کو نہیں سمجھا ہے کہ نماز کا وہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز کھلی ہوئی برائی سے بھی انسان کو روکتی ہے، اور چھپی ہوئی جو رات کے اندھیرے میں انسان برائیاں کرتا ہے اس سے بھی انسان کو روک دیتی ہے۔ نماز طاقت کا نام ہے، نماز تلاوت کا نام ہے، نماز دعا کا نام ہے، نماز عبادت کا نام ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو تمام عبادت پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اسی لیے نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو کھڑی کرو۔ نماز کو کھڑی کرو گے، نماز تم کو زکوٰۃ پہ کھڑی کرے گی، نماز تم کو روزے پہ کھڑی کرے گی، نماز تم کو یتیم کی کفالت پہ کھڑی کرے گی، نماز تم کو یہ غریب کی اعانت پہ کھڑی کرے گی، نماز بھوکوں کو کھانا کھلانا سکھائے گی، اور اللہ کے رسول کے ہر سنت کو زندہ کرنے کی صلاحیت نماز پیدا کرے گی۔ نماز کے اندر اتنی طاقت ہے، یہی فلسفہ ہے، کہا کہ روز محشر کے جاگتاز بود اولی پرش سے نماز بود۔ لوگوں نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی، پہلا سوال نماز کا ہوگا، تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور نماز اگر تمہاری قبول ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ قبول ہو جائے گی، روزہ قبول ہو جائے گا، حج قبول ہو جائے گا، تسبیح قبول ہو جائے گی، عبادتیں قبول ہو جائے گی، صدقات قبول ہو جائیں گے، خیرات قبول ہو جائیں گے، تم نے جو راستے میں اللہ کے راستے میں چلا ہے وہ چلنا قبول ہو جائے گا، تم نے اللہ کے راستے میں جو عبادتیں کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن نماز اگر قبول نہیں ہے تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ وجہ یہی ہے کہ نماز ایک ایسی طاقت ہے جو زکوٰۃ کی عبادت کو کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اگر کسی عبادت میں ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا، بھائی روزہ کھانے سے رکنا ہے۔ نماز میں انسان جب نیت باندھتا ہے تو وہ کچھ نہیں بولتا ہے، نہ سلام کا جواب دیتا ہے، نہ بال بچے کی پرواہ کرتا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں جمع کر دیا ہے۔ کیا ہم اس عبادت کو سمجھیں گے؟ انشاءاللہ سمجھیں گے تو آگے آ جائیے، اللہ کے واسطے آگے بڑھیے۔ آگے بڑھتا ہے، اللہ کا اعلان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے راستے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، حرکت سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ اے لوگو تم وہاں کھڑے ہو، اتنی دور پہ یہ مائک کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کیا سننا چاہتے ہو؟ کس کام کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے واسطے آگے بڑھو، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرو۔ آج میں اس جلسے میں اس بات کا، اس سبق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ آگے بڑھیے، بات نہیں پہنچ رہی ہے، مائک کو اٹھا کر پھینک دیجئے اور ایسے بات کیجئے۔ آپ لوگ آگے بڑھیے، آگے آئیے، آگے آئیے، آگے آنے کہہ رہے ہیں۔ آپ سے چندہ نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے آئیں۔ اللہ کی بات ہو رہی ہے، مسجد میں عبادت کرتے ہو، 70 سال سے تم نے عبادت کی، تم بتاؤ کہ رکوع میں کیا ہوتا ہے، تم بتاؤ کہ سجدے میں کیا ہوتا ہے، تم کو کیا سکھایا گیا؟ اور تمہاری نمازی نماز پڑھتا ہے چوری کرتا ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے بدنگاہی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور جا کے وہ آنکھیں لڑاتا ہے اور عشق لڑاتا ہے۔ یہ نماز کون سی نماز ہے پرندہ والوں؟ کہ جو ہماری نماز ہم کو برائی سے نہیں روکتی ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں روکتی ہے، سود لینے سے نہیں روکتی ہے۔ یہ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نے اللہ کے رسول والی ایک گرگدی والی نماز نہیں چھوڑی اور اللہ کے رسول والی نماز پڑھنی شروع نہیں کی، خدا کی قسم 70 سال کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ لوگوں 70 سال سے عبادت کر رہے ہو، کیا فائدہ ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا ما انا علیہ واصحابی، دیکھو راستہ وہ ہوگا جو میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے۔ نماز کون سی پڑھو گے؟ ارلیہ والی نماز پڑھو گے، گیاری والی پڑھو گے، پرندہ والی پڑھو گے؟ نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میری پڑھو گے۔ دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، ارے نماز پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جبکہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، اللہ کے رسول
रसूल ने दोबारा नमाज पढ़वाई, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दोबारा नमाज पढ़ो। लोगों, मस्जिद ये अल्लाह का घर है। इस घर में जो इबादत होती है नमाज, उसको अगर हमने नहीं समझा तो हमारी इबादत बेकार है, ये अकारत जा रही है। उस नमाज के अंदर ईमान वाले की कीमत बतलाई गई है कि ईमान वाला देखो कितनी कीमत रखता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कोई शेरवानी पहन करके उसी सफ में है, कोई फटा हुआ कुर्ता पहन करके उसी सफ में बैठा हुआ है, कोई लुंगी ओढ़ के बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि देखो कोई आगे मत बढ़ना और कोई पीछे मत हटना, सब में सीधी रहना। गोया कि तुम्हारी सबकी कीमत एक है, सबका भाव एक है, सबका रेट एक है। ईमान वाला फिर तन्हा नहीं है, सफों में सब एक के शाने में शाना खड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों, जिम्मेदारी की बात तो ये है कि ईमान वाले को उसकी जिम्मेदारी 5 वक्त मस्जिद में, इसी मस्जिद में बुला करके उसकी तरबियत दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखलाया जाता है, उसको बतलाया जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा सिर्फ मौलवी को जिम्मेदार नहीं कहा है, मुफ्ती को नहीं कहा है, मौलाना अब्दुल सलाम को ही नहीं कहा है, मुफ्ती असरार साहब को नहीं कहा है, मुफ्ती रागिब साहब को नहीं कहा है, मौलाना मुसव्वर साहब को नहीं कहा है, जनाब मौलाना नूर आलम साहब का कोई जिम्मेदार नहीं कहा है। अल्लाह के रसूल ने तो कहा है कि लोगों, जो भी ईमान वाला है, जिसने ईमान का कलीमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के रसूल पर, मरने के बाद वाली जिंदगी पर जिसने भी ईमान लाया वो साहिब ईमान हुआ और उसके अंदर एक ताकत आई है जिससे उसकी कीमत एक हो गई है। लेकिन सबकी जिम्मेदारी यकसा है, जिम्मेदार है। अल्लाह के रसूल ने चार्ज दिया, मौलवियों को दिया कि उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी के वारिस होंगे, लेकिन ये उम्मत के लोगों से भी कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारे हवाले भी ये काम करके जा रहा हूँ। अम्र बिल मारूफ करोगे, नही अनिल मुनकर करोगे। देखो, कोई ये ना कहे कि हम तो मुखिया नहीं हैं, कोई ये ना कहे कि हम तो मस्जिद का इमाम नहीं है, कोई ये ना कहे कि हम वार्ड के मेंबर तो नहीं है, कोई ये ना कहे कि हम ब्लॉक के और हल्के के असेंबली हल्के के एमएलए तो नहीं है। नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम सब के सब इमाम हो, तुम सब के सब इमाम हो। हदीस में कहा गया है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ऐ लोगों, ईमान लाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि हर आदमी तुम में से ईमान की बरकत से, ईमान की दौलत से, ईमान की ताकत से, ईमान की वजह से एक चार्ज में आ गया है, एक ताकत उसको मिल गई है कि वो जिम्मेदार बन गया है। कोई औरत खबरदार ये ना कहे कि मैं तो मुखिया नहीं हूँ, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो आलिम नहीं हूँ, मैं तो औरत हूँ, बर्तन मांजती हूँ, घर में रहती हूँ, 4 दीवार के अंदर रहती हूँ। खबरदार, ईमान वाले की कोई बहन इस तरह की बात जुबान से न निकाले, बल्कि अम्मा जान हजरत आयशा की सीरत को, सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने कहा अलमरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ अम्मा तू क्या बोल रही है, मेरा काम बर्तन मांजना है, हम बर्तन मांजेंगे, मौलवी साहब न पढ़ाने के लिए जाएंगे, हम तो घर में रहते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, हमारा कोई सवाल नहीं होगा। कान खोल कर सुन लीजिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने कहा तू अपने शौहर के घर में रहती है, जिसका चार्ज मिला हुआ है, जिसकी तू मलिका बनी हुई है, कान खोल कर सुन लो, उसकी निगरानी, उसकी निगराह हो, वहां के इमाम हो, और तुम्हारी मातहती में जो शौहर का घर है, शौहर का माल है, शौहर की औलाद है, जो तुम्हारे भी बच्चे हैं, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम जुल्म करती हो, अपनी बर्तन को भी, अपने बच्ची को भी बर्तन मांजने में लगा देती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर हम अपनी जिंदगी को लाएंगे, खुदा की कसम हम कामयाब होंगे। हर जुमे के अंदर जो एक जलसा मुनाकिद किया जाता है, हफ्ते की ईद है, वहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसनून खुतबा पेश किया जाता है, खुतबा तकरीर को कहते हैं। जैसे तकरीर ये हो रही है, उलमाए किराम ने की है, अभी और तकरीरें, अहम तकरीर
तकरीरें बाकी है जो होनी है। तो हर जुमे में मर्दों के सामने नमाज से पहले खुतबा होता है, तकरीर होती है और कहा जाता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा। हर जुमे में, हर खुतबे में, गरगद्दी में भी, पुरंधा में भी, अररिया में भी, खाने काबा के अंदर भी, वहाँ पे भी जो जुमा होता है, हर जगह पूरी दुनिया में इमाम खुतबा कहता है, तकरीर कहता है और आखिर में इस बात पर अपनी तकरीर को मुकम्मल करता है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, एहसान का हुक्म करता है, अदल का हुक्म करता है। अदल किसके? अदल काजी के लिए भी है, अदल जो है सरपंच के लिए भी है, जज के लिए भी है, लेकिन हर ईमान वाले को अदल की वसीयत और नसीहत की जाती है। देखो, इंसाफ करना, अपने साथ इंसाफ करना, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना, अपने घर के साथ इंसाफ करना, ये वसीयत की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए जिनका नाम बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अपने बच्चे को साथ में लेकर आए थे। उनकी अम्मा बहुत दिन से जिद कर रही थी कि बशीर अपने बच्चे नौमान को बाग रजिस्ट्री करके दे दो। अल्लाह के रसूल को गवाह बनाने के लिए वो लोग आए थे। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत बशीर ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये नौमान की अम्मा ये कह रही है कि बगीचा रजिस्ट्री कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, बगीचा रजिस्ट्री कर रहे हो। नौमान के और भी भाई हैं, उन्होंने कहा कि हाँ और भी भाई हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सबको दे रहे हो? कहा नहीं, सबको नहीं दे रहे हैं। कहा सिर्फ नौमान को दे रहे हैं। सबसे छोटा है, सबसे लाडला है, सबसे प्यारा है, माँ का दुलारा है, इसीलिए माँ उसको दे रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे बगीचा देना जुल्म है? कोई अपने बेटे को जमीन देता है, किसी के बाप की जमीन देता है क्या? अपनी जमीन देता है? ये जुल्म है। यही तो कहता है समाज में कि मैं किसी के बाप की जमीन दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को अपने बाप की जमीन दे रहा हूँ, अपनी जमीन दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने इसको भी जुल्म कहा है। बेटा को जमीन दे रहा है लेकिन दूसरे बेटे को नहीं दे रहा है। तो लोगों, सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी करना। और सबसे पहला हक क्या है? बच्चों की दीन की तालीम का इंतजाम करना। ये लोगों 70 साल से इबादतें कर रहे हो लेकिन तुम रुकू और सजदे को नहीं समझ रहे हो। वजह यही है कि हमने समझा कि मेरा वक्त गुजर गया है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने बतलाया मुसलमानों को पढ़ना है, ईमान वालों को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? माँ की गोद से शुरू करना है और कब्र की गोद तक जाना है। क्या हम पढ़ने का अहद करते हैं ना? इंशाअल्लाह सीखने का हाथ उठाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये जलसा इसीलिए मुनाकिद किया जाता है कि एक जलसे में एक इनकलाब आना चाहिए, इबादत का मज़ा आ जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर हमारी नमाज होगी तो नमाज हमको चोरी से भी रोकेगी, ज़िना से भी रोकेगी। नमाज हमारे अंदर के आलाइशों को भी दूर करेगी और बाहर के मैल को भी दूर करेगी और समाज को इनकलाब का पेशखीमा बनाएगी। लेकिन समझने की ज़रूरत है नमाज किस लिए है, जमात का अज्र क्यों है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जमात के साथ नमाज पढ़ोगे तो अज्र ज़्यादा मिलेगा और अकेले पढ़ोगे तो अज्र कम हो जाएगा। लोगों, बताना है कि इस्लाम और ईमान तो ये कहता है, उसका तकाजा ये है कि अल्लाह की मदद जमात पर होती है। उस जमात में बुला करके एक दूसरे का ख्याल करने की तालीम की जाती है। इमाम और मुक्तदी का रिश्ता समझाया जाता है। इमाम के साथ क्या सुलूक होना चाहिए और मुक्तदी के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। मुक्तदी क्या करेगा, इमाम क्या करेगा। औरत को भी इस्लाम ने इमाम बनाया, सरपंच को भी इमाम बनाया, मर्द को भी इमाम बनाया और हमारी माँ बहनों को भी इमाम बनाया। और मस्जिद में जो इमाम है उसको आगे करके आगे बढ़ा करके बताया इमाम के साथ क्या सुलूक किया जाता है, इमाम के साथ पीछे कैसे रहना चाहिए। इसीलिए वहाँ नियत की जाती है कि 4 रकत नमाज इशा की फर्ज
मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, इस इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर। क्या मतलब हुआ? अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह गवाह रहिएगा, अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह गवाह रहिएगा, ए अल्लाह गवाह रहिएगा। बोलिए, ए अल्लाह गवाह रहिएगा। मैं इस इमाम के पीछे रहूंगा, 4 रकत नमाज बीच में छोड़ के भागने वाला नहीं, मुकम्मल करूंगा, पूरा करूंगा, इसकी इमामत में हूँ। अच्छा, कोई इस तरह की नियत करता है और इमाम साहब के आगे अगर कूद के चला जाता है, नमाज हो जाएगी ना उसकी? क्या होगी? फासिद हो जाएगी नमाज। क्यों फासिद होगी? क्यों होगी? क्यों होगी? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह मियाँ को गवाह बनाया था, ये अल्लाह गवाह रहिएगा, हम इस इमाम के पीछे रहेंगे, और वो हो गया, वो इस इमाम के आगे हो गया। कहता कुछ है, करता कुछ है। ये ईमान वाला नहीं है, ये नमाज वाला नहीं है, ये रसूलुल्लाह के फरमान वाला नहीं है, ये कुरान वाला नहीं है, ये समझ नहीं रहा है और बोलता है जुबान से कुछ, ये मुनाफिक है, इसकी जगह यहाँ नहीं है। ऐसे लोगों की नमाज फासिद होती है। जिसकी नमाज फासिद है वो शख्स समाज के लिए भी फासिद होगा। वो मुनाफिकत कर रहा है, उसको हर हाल में जो बोलता है जुबान से उस पर कायम रहना होगा। ये नहीं कि बोलता कुछ और है, करता कुछ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को भी कहा कि देखो तुम्हारा मुक्तदी है, उसका तुम भी ख्याल रखना। क्या ख्याल करोगे? एक मौके पे आकाए बदरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को छोटी कर दी। साहबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल आज तो नमाज बड़ी छोटी आपने पढ़ा दी। कहा कि हाँ, एक बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कान में आई, मैंने सोचा, मैंने दिल में ये ख्याल किया कि ये बच्चा भूख से रो रहा है। लोगों कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को बच्चों से इतना प्यार था कि वो बच्चों को सलाम कर क्या करते थे। अल्लाह के रसूल उसको मुस्तकबिल कहते थे। दीन को हर कच्चे पक्के मकान में घुसाने की ताकत है हमारी नस्लों के। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई तो मैंने नमाज हल्की कर दी, इस ख्याल से कि उसकी माँ नमाज में है, उसको भूख लगी है, जल्दी से नमाज से फारिग होगी तो बच्चे को दूध पिलाएगी। लोगों इसको समझना है। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान में भूखा किसके लिए रहते हैं? अपनी अम्मा के लिए भूखा रहते हैं, अपने अब्बू के लिए। किसके लिए भूखा रहते हैं? बोलिए जोर से। अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए भूखा रहोगे। अल्लाह हम सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की रिजा में जो भूखा रहता है अल्लाह को बड़ा रहम आता है, बड़ा प्यार आ जाता है बंदे पे। कहता है मेरा बंदा मेरी याद में, मेरी मोहब्बत में ये भूखा रहा है। अरे इसका बदला क्या दूं फरिश्तों, बताओ क्या बदला दूं? आखिर में ये कह देता है कि इसका बदला मैं ही हो जाऊं, मैं ही इसका हो जाऊं। कहिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की मोहब्बत में जो बंदा भूखा रहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एंट्री के लिए, दाखिले के लिए स्पेशल दरवाजा और गेट बना दिया है। उसका नाम बाबुर रैयान है, रोजेदार का दरवाजा। और वो माँ जो बच्चे के लिए भूखी रहती है, बच्चा बीमार था, सत्यवर्धन के यहाँ से दवा लेके आई थी, दवा खिलाई, लेकिन बच्चा दवा तो खाया, वो भी उल्टी कर दिया, दवा भी नहीं खाया, बेचैन है, परेशान है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बाप सो गया है, भाई सो गया है, दादा सो गया है, लेकिन माँ जगी हुई है। और खाना आया, खाना नहीं खाया कि मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है, इसीलिए मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। इसलिए अल्लाह को जलाल आता है कि एक बंदे के लिए एक बंदी भूखी रहती है, ए जन्नत आओ, और अल्लाह पटक के उसके कदमों में डाल देता है, माँ के कदमों में जन्नत। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने एक बंदे की ये कीमत लगाई है। खाने काबा से अगर कोई अजमत है, ताकत है, ईमान वाले की अहमियत है। अल्लाह के रसूल
10वीं ज़िलहिज्जा को तकरीर कर रहे थे। खतब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अन्नहर, 10वीं ज़िलहिज्जा को खाना काबा यानी मिना में वहाँ तकरीर कर रहे थे। हज का मौका था। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि लोगों बताओ अय्यु यौमिन हादा, ये कौन सा दिन है? लोगों ने कहा कि यौमुन हराम, मोहतरम दिन है, 10वीं ज़िलहिज्जा का है, बड़ी बरकत वाला है, बड़ी अहमियत वाला है, बड़ी फजीलत वाला है, बड़ा अजर सवाब का हामिल ये दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, अय्यो शहरिन हाजा, ये कौन सा महीना है? जैसे ये महीना शाबान का है, रमज़ान का हम इस्तिक़बाल करने जा रहे हैं, इस शाबान के महीनों को भी अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ मंसूब किया, ये फजीलत वाला है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। इस महीने में अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे। हम रमज़ान का इस्तिक़बाल करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, लेकिन खोपड़ी में इतनी भी बात नहीं आती कि अल्लाह के रसूल ने रमज़ान का इस्तिक़बाल कैसे किया लोगों? रमज़ान का इस्तिक़बाल अल्लाह के रसूल ने रोज़ा रख के किया है। हम भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। कुछ दिन बचे हैं, रोज़ा रख के रमज़ान का इस्तिक़बाल करो। सिर्फ पेपर छपाने से रमज़ान का इस्तिक़बाल नहीं हो सकता। अम्मा जान हज़रत आयशा ने कहा है, उनकी रिवायत है, मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिऐन इल्ला शाबान व रमज़ान, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आक़ाए मदनी को नहीं देखा कि मुसलसल रोज़ा रखते हो, लेकिन 2 महीना ऐसा है जो मुसलसल आप रोज़ा रखते थे। अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे मुकम्मल। ये अल्लाह के रसूल का महीना है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ज़िंदा करना है तो लोगों रोज़े से रमज़ान का इस्तिक़बाल कीजिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमें कहना ये था, अल्लाह के रसूल ने कहा ये कौन सा महीना है? ये मोहतरम महीना है। कहा हज का महीना है, हज का महीना मोहतरम होता है। फिर तीसरा सवाल किया, अय्यो बलदिन हाजा, ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा कि ये बलदे हराम है, यहाँ तो घास भी उखेड़ना मना है। हाजी गए हैं, घास भी नहीं उखेड़ सकते हैं हरम के अंदर। अल्लाह के रसूल ने कहा कान खोल कर सुन लो, इफ़इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम फी हादा व फी शहरिकुम हादा व फी बलदिकुम हादा। आद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरारा व तकरारा, कई मर्तबा अल्लाह के रसूल ने इस बात को दोहराया और फिर कहा, ए अल्लाह गवाह रखिएगा, मैंने बता दिया है इन लोगों को, इस्लाम का सही जायका चखा दिया है, इस्लाम का फलसफा सुना दिया है। और सुन लो, जो मौजूद है, जो आया नहीं है, उस तक पहुँचाओगे इस पैगाम को, इस अमानत को। अल्लाह के रसूल ने कहा फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो हाजिर है पहुँचा दो। अल्लाह के रसूल को ये कहना था, ईमान वाला कितना कीमती है, उसकी कीमत कितनी है कि खाना काबा से भी ज़्यादा और उस महीने से भी ज़्यादा, उस दिन से भी ज़्यादा आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया है लोगों। इसीलिए ईमान वाला तो कहा ही है, वो ईमान वाला वो है ही नहीं जो ईमान वाले की तकलीफ में शामिल न होता हो। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नमल मोमिनून इख्वा, ये कुरान कहता है, उसकी तफसीर हदीस में कहा है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसलमान होने का मतलब तो यह है कि मुसलमान पर जो जुल्म न करता हो। मुसलमान होने का मतलब तो यह है कि मुसलमान के काम आता हो। अल्लाह के रसूल ने कहा मुसलमान होने का मतलब तो यह है कि मुसलमान की पर्दा पोशी करता हो। यह नहीं कि चाय खाने में जा करके उनकी जो है कुरेद करके उनके अयूब को निकालता हो। अल्लाह के रसूल ने मुसलमान होने का मतलब ये समझाया है। आज हम मुसलमान होने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। मुसलमान होने का मतलब यह है, ईमान वाले की ये ताकत है। इकराम मुस्लिम बोलते हैं, इकराम मुस्लिम करते नहीं है, मुसलमानों से नाराज रहते हैं। 3 दिन से जायद एक ईमान वाले से गुफ्तगू करना हराम है, हराम है, हराम है। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याजुर अखाहुल मुस्लिम फौक सलास लयालिन। अल्लाह के रसूल ने 3 दिन से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। क्यों मुँह लटका के इधर उधर जा रहे हो? क्यों हमारी माएँ बहनें इसके खिलाफ कर रही है? लोगों, इस चीज़ की तरबियत नमाज में बतलाई जाती है, बुला करके दिखाया जाता है कि देखो जिम्मेदार कैसा होता है। जिम्मेदार ख्याल करता है, मन अम्मन नास फलयुखफ़िफ़। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमको इमाम बनाया है, इमाम बनाया है तो अपनी इमामत का ख्याल करना। इमाम तो वो होता है जो सबका ख्याल करता है। अभी एक वाक़या हमको सुनाया एक साहब ने कि एक साहब गए, खेत से आए थे हल चला करके, और खाना उनके सामने अहलिया ने ला के रखा।
पूरा खाना खा गया। आखिर में जो है उन्होंने हांडी पोंछ के रखा, वो भी खा गया। फिर कहा कि और है, तो अहलिया ने हांडी ला करके उसके सामने रख दिया कि यही है। हांडी की तरफ झांक के देखा कि अच्छा, खाना कहाँ चला गया? कहा कि सब आपके जहन्नम में चला गया, आप ही के जहन्नम में चला गया सब खाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ईमान वाला जिम्मेदार होने का, और आप इमाम हो, और कैसे इमाम हो कि मुक्तदी का ख्याल नहीं किया। बच्चा आपकी इक्तदा में था, उसका ख्याल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया। अहलिया जो खाना पकाती है उसके बारे में पूछना चाहिए। सबसे पहला हक उसका है जो खाना पकाती है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही कहती है, ये नहीं कि बच्चे का भी खाना अपने समेट लिया जहन्नम में और अहलिया का भी खाना समेट लिया। ये कैसा इमाम है, कैसा ईमान वाला है, कैसी इमामत हो रही है। मस्जिद में इमामत अगर सही नहीं होगी तो खुदा की कसम समाज में भी इमामत सही नहीं हो सकती है, जिम्मेदारी का ख्याल नहीं पैदा हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हल्की नमाज पढ़ोगे, इमाम अगर बनोगे, नमाज हल्की, ये सूरह बकरा एक रकत में नहीं पढ़ोगे। अभी तरावी के वक्त देखिएगा ना, नया हाफिज जो है वो चाहता है कि 3 दिन में, 1 दिन में तरावी मुकम्मल कर दें। उसको कहिएगा कि नमाज का मजाक मत बनाइए, कम से कम 15 दिन में कुरान मुकम्मल होना चाहिए। करेंगे ना हम लोग इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज ऐसी पढ़ाओ, इमाम हो तो अपने मुक्तदी का ख्याल करना। कोई गैस पेशेंट है उसका भी ख्याल करोगे, कोई पथरी का ऑपरेशन करा के आया है, किसी के घुटने में दर्द है, कोई बूढ़ा है, उसका भी ख्याल करोगे। ख्याल करोगे तो इमाम होने का मतलब यही है कि ख्याल करना है। अगर ख्याल नहीं करोगे तो इमाम होना क्या है। मुक्तदी को भी कहा कि इमाम से कोई गलती हो जाए तो बढ़िया से गलती का जवाब देना है। अभी तरावी के मौके पे होता है कि इमाम साहब जोश में रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं और दूसरी रकत में बैठना था, बैठते नहीं है, खड़े हो जाते हैं। तो पीछे से क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए जोर से। हाँ, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, मसनून तरीका है। तो सुभान अल्लाह का मतलब यही है कि गलती से पाक है ज़ात अल्लाह की, और इमाम साहब आपसे चूक हो गई। ये सलीका बतलाया कि बाप से अगर जो जिसकी इमामत में हो घर में, बाप की इमामत में बाप से गलती हो जाएगी तो उसके गर्दन में मफलर लगा के खींचोगे मत, बल्कि क्या कहोगे, अब्बा जान आपसे चूक हो गई है। अगर बाप कहे शिरक करने के लिए तो फिर भी करेंगे नहीं, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। इसीलिए कहा कि इमाम अगर 4 रकत की नियत के तो 5 रकत पढ़ाना चाहिए तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे उनको बतलाना है कि आपसे चूक हो गई है, कायदे से बतलाना है। ये तरीका बतलाया लोगों, मेरा वक्त हो गया है। ये तरीका बतलाया गया है कि समाज में हमको एक जिम्मेदार बनाया है इस्लाम ने और ईमान ने, रसूलुल्लाह के फरमान ने और कुरान ने, कुरानी अहकाम ने। तो उस जिम्मेदारी को हम कैसे अदा करेंगे। इसीलिए एक मुक्तदी को कहा कि देखो इमाम जो है ना, इमाम जब तिलावत करेगा तो चुपचाप खड़ा होकर के सुनना। ये नहीं कि बाप भी तकरीर कर रहा है, बेटा भी तकरीर शुरू कर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।